Hello students, welcome back to this YouTube channel. Today in the series of 11th Commerce CCSP, we will be continuing with our chapter number 4 of CC, that is layout of business letter. Until now in the first 3 chapters of CC, we have learned about commercial correspondence or process of communication, you can say communication and correspondence, types of communication, methods of communication. Then in the second chapter we learn about the characteristics of effective communication, types of business letters, formal, informal, methods, specimen, formats. And the last chapter, that was third chapter, we learned about the appearance, how the letter should be, how paper should be, how it should be typed, in what kind of envelope it should be, and all. So now onwards in fourth chapter we will be learning about layout of business letter. We have already learned the format of business letter. Now we will be learning about layout. Except format, what should be there, extra what should not be there, at what place anything should be there. Okay, so in this chapter we will be learning about layout of business letter. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एक जो बिजनेस लेटर है उसके अंदर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है, रखनी होती है, और कौन सी प्लेस पे, कौन सी जगह पे कोई इन्फॉर्मेशन हमें शो करनी होती है. ओके, सो क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. लेट अस सी. फर्स्ट विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, obvious reasons. Then we will learn about regular parts, explanation of regular parts with an example, occasional parts. बेसिकली देखा जाए तो इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. एक रेगुलर पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर जो हर बिजनेस लेटर में होता है, और दूसरा ओकेजनल पार्ट्स मींस ऑप्शनल पार्ट्स जो उसको हम जब चाहे यूज कर सकते हैं, हमेशा हम उनको यूज करना कंपलसरी नहीं होता. ओके, देन वी विल बी हैविंग डिटेल स्टडीज ऑफ रेगुलर पार्ट्स. रेगुलर पार्ट्स के कौन कौन से रेगुलर पार्ट्स है? हेडिंग, डेट, इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर. सो ये ऐसे 7 पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा एक लेटर में कंपल्सरीली फ्रेम करने होते हैं. उसके बाद आते हैं डिटेल स्टडी ऑफ ओकेजनल पार्ट्स, उसको हम बोलते हैं ऑप्शनल पार्ट्स. ऑप्शनल पार्ट्स हमारे ऊपर होता है, अगर हमें जरूरत फील होती है तो हमें मेंशन करना है, वरना कंपलसरी नहीं होते. ऑप्शनल पार्ट्स में आते हैं पर्सनल एंड अदर नोटेशंस, अटेंशन लाइन, सब्जेक्ट लाइन, एनक्लोजर, कार्बन कॉपी जिसको हम सीसी भी बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन लाइन, मेलिंग इंस्ट्रक्शंस एंड पोस्टस्क्रिप्ट्स. ओके, सो इन टोटल 15 पार्ट्स ऐसे हैं लेटर के जो हो सकते हैं. 7 रेगुलर है, कंपलसरी है, एंड 8 आर ऑप्शनल. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन कवर कर ही लिया, फिर भी हम देखते हैं. There are various styles for letter writing. Among this, fully block and modified block, जिनके हमने दो फॉर्मेट देखे थे, are used on large scale. The two letters for which the format we have seen in the chapter number 2. Various characteristics that make the letter meaningful are always been taken care of. It is fact that when we receive a letter, our attention is primarily attracted towards its outward appearance. The 6 points that make the letter attractive should necessarily be taken care of. 6 पॉइंट्स है जो लेटर को अट्रैक्टिव बनाते हैं, जो हमने लास्ट चैप्टर 3 में पढ़े थे. दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ. ओके, सो देखा जाए तो इंट्रोडक्शन में क्या, चैप्टर 2 का हमें ब्रीफ बता दिया, चैप्टर 3 का ब्रीफ बता दिया. नाउ टॉकिंग अबाउट इफ द लेटर इज अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस एंड रिटन प्रॉपर्ली, द प्रोसेस ऑफ कमर्शियल कम्युनिकेशन बिकम्स fruitful. In addition to this, the structure or format of a business letter too is an important facet. A business letter is divided into several parts, and if they are arranged in fixed order, the letter becomes meaningful and create desired impact on the reader. Among these various parts, there are few regular parts that should be compulsorily included, whereas there are occasional parts that are included as and when necessary in the structure of letter. These parts are also known as occasional parts. Optional parts है यहाँ पे. There is a mistake over here. Optional parts included as per their need. All the parts which form the layout of business letter are divided into 2 parts, regular parts and occasional parts or optional parts. जो हमने पहले डिस्कस किया वही है. रेगुलर पार्ट्स एंड ऑप्शनल पार्ट्स या ओकेजनल पार्ट्स में डिवाइडेड है पूरा लेटर. स्टार्टिंग विद द रेगुलर पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर. It is necessary to maintain pre-decided accepted formats of business letter. Accordingly, heading, date, inside address, salutation, body of the letter, complimentary close and signature
should be included in the pre-decided order at pre-decided place. ये 6 चीजें हैं जो है हमारे पास, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 7 जो है वो pre-decided order में और pre-decided place पे मेंशन करना कंपलसरी है, जरूरी है. All these parts should consist all the necessary information. If any part is missing or misplaced, then structure of letter would be inaccurate. अगर कुछ इनमें से मिसिंग या मिसप्लेस्ड है तो स्ट्रक्चर इनएक्यूरेट हो जाएगा. ओके, तो क्या क्या है, 7 पार्ट्स है कंपल्सरी. सबसे पहले हेडिंग और लेटर हेड, डेट, इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर के 3 पार्ट्स है, इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ, मिडिल पैराग्राफ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर. These are the 7 we can say compulsory parts of compulsory regular parts of business letter जो एक लेटर में होने ही चाहिए. एक स्पेसिमन देखते हैं लेटर का. सबसे पहले हेडिंग, मिडल ऑफ द पेज पे ही हेडिंग आएगी. ओके, हेडिंग क्या है, अगर हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करें, मतलब अगर जब एक बिजनेस यूनिट दूसरे बिजनेस यूनिट को लेटर के थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है या कम्युनिकेट कर रहा है तो जनरली वो लेटर पेड के थ्रू ही, लेटर हेड के थ्रू ही करते हैं. तो उस लेटर हेड पे हमेशा सेंटर ऑफ द पेज पे हेडिंग मेंशन होती है. ओके, देन फोन नंबर ऑन द लेफ्ट, ईमेल ऑन द राइट. ओके, ये ईमेल इस जगह पे भी आ सकता है और दोनों सेपरेटली भी हो सकते हैं. सो फोन नंबर एंड ईमेल इज अ पार्ट ऑफ हेडिंग ओनली. फोन नंबर एंड ईमेल इज अ पार्ट ऑफ हेडिंग ओनली. देन कम्स द डेट ऑन द राइट साइड एंड इनसाइड एड्रेस ऑन द लेफ्ट साइड. दोनों कंपल्सरी है. Then salutation. Now talking about inside address क्या होता है. एक ब्रीफिंग दे देता हूँ मैं पूरे लेटर की आपको. इस हेडिंग के अंदर, हेडिंग मीन्स नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो लेटर लिख रहा है, उसका एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल नंबर. ओके, उसके बाद डेट, जिस डेट को लेटर ड्राफ्ट किया जा रहा है, फ्रेम किया जा रहा है या लिखा जा रहा है. इनसाइड एड्रेस. इनसाइड एड्रेस मीन्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन or the institution to which the letter is written. Means उस institution का, उस business का या उस individual person का नाम और एड्रेस जिसको ये लेटर लिखा जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल हम बैंक को लिख रहे हैं तो टू ब्रांच मैनेजर SBI बैंक, धर्मज ब्रांच, आनंद ब्रांच, वडोदरा ब्रांच, अहमदाबाद ब्रांच, मुंबई ब्रांच, whatsoever is the address. ओके, सो वो इनसाइड एड्रेस. इनसाइड एड्रेस मीन्स रिसीवर्स एड्रेस बोल सकते हैं उसको, कॉमन लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं receivers address. Then comes salutation. Salutation means जो respect जो हम देना चाहते हैं, जो हम देते हैं respect to the receiver, that is known as salutation. Respected sir, respected ma'am, dear sir, dear ma'am. ओके, उसके भी कुछ रूल्स हैं वो हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन salutation means warm greetings or respect that we want to give. ओके, देन कम्स द बॉडी ऑफ लेटर. बॉडी ऑफ लेटर 3 पैराग्राफ में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ, मिडल पैराग्राफ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ. ओके, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, लेटर फ्रेमिंग के कुछ रूल्स है जो हमें कंपलसरी फॉलो करने पड़ते हैं. जैसे ही वैसे ही बॉडी ऑफ द पैराग्राफ का रूल है. इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में आप खुद का इंट्रोडक्शन दोगे, खुद का, खुद की फॉर्म का, बिजनेस का, और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोगे आपने किस लिए लेटर लिखा है. मिडिल पैराग्राफ में उसको पूरी तरीके से समझाओगे, आपने जिस पर्पस से लेटर लिखा है उसको. एंड इन द कंक्लूडिंग पैराग्राफ यू विल कंक्लूड, और हम ये बताएंगे, तो हम लेटर कंक्लूड करेंगे, मीन्स लेटर खत्म करना चाहेंगे, और साथ में हम ये लिख देंगे, हम ये बता देंगे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द कंक्लूडिंग पैराग्राफ. ओके, देन ऑन द राइट साइड ध्यान रखना, नथिंग ऑन द लेफ्ट साइड. ऑन द राइट साइड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मीन्स योर सिंसियरली, योर फेथफुली, whatever it can be. उसके भी रूल्स हैं, हम देखेंगे वो भी. एंड देन सिग्नेचर विद द signature of the one who is writing. Okay, so this is the regular part, these are the regular parts. ये तो हमें नॉर्मल लेटर में लिखना और लिखना ही है. ओके, एक बार हम जूम आउट करके देख लेते हैं. This is our letter. Heading, phone number and email number is a part of heading. Inside address on the left, date on the right. Salutations on the left. Body of the paragraph divided into 3 paragraphs: introductory, middle, and concluding. Then on the right, complimentary close and signature.
Clear? Now talking about occasional or optional parts of business letter. This will be continuing with the briefing of this will be doing in the एक काम करते हैं इसको आज सॉर्ट आउट कर लेते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में हम ब्रीफ में समझेंगे व्हाट आर रेगुलर पार्ट्स एंड ओकेजनल और ऑप्शनल पार्ट्स ओके सो ओकेजनल और ऑप्शनल पार्ट्स हमने पढ़ा था कि 8 टाइप्स ऑफ ओकेजनल और ऑप्शनल पार्ट्स हैं पर्सनल एंड अदर नोटेशंस सब्जेक्ट लाइन कार्बन कॉपी नोटेशंस मेलिंग इंस्ट्रक्शंस अटेंशन लाइन एनक्लोजर आइडेंटिफिकेशन लाइन एंड पोस्टस्क्रिप्ट एनी 8 ऑफ देम कैन बी मेंशन मींस अगर हमें एक की जरूरत है तो हम इस 8 में से सिर्फ एक पार्ट को मेंशन कर सकते हैं 8 आउट ऑफ 8 की रिक्वायरमेंट है हमें नेसेसरी लगता है तो हम 8 की 8 चीजें मेंशन कर सकते हैं okay so nothing is compulsory in this we can use only one we can use any one or any 8 whatever you want we can use okay एक स्पेसिमन इसका देख लेते हैं इसकी ब्रीफिंग में आपको जब इसको समझाऊंगा इन द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ द वीडियो तब मैं दूंगा कि पर्सनल नोटेशंस क्या होते हैं सब्जेक्ट लाइन क्योंकि अभी मैं पूरा ब्रीफ में समझा नहीं पाऊंगा और ये आप रेगुलर पार्ट्स तो क्या हमें पता रहता है एक्चुअली ओकेजनल पार्ट्स आपको मैं ब्रीफली एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनेशन ही समझाऊंगा खाली अभी के लिए सिर्फ हम देख लेते हैं कि ऑप्शनल पार्ट्स है जो ओकेजनल पार्ट्स है वो लेटर में किस जगह मेंशन होते हैं ओके so this is the specimen heading is a regular part phone number and email is a regular part date is a regular part सबसे पहला ऑप्शनल पार्ट होता है यहाँ पे पर्सनल एंड अदर नोटेशन ओके देन सेकंड ऑप्शनल पार्ट होता है यहाँ पे सब्जेक्ट से ऊपर अटेंशन लाइन okay subject is regular salutation is regular body is regular complimentary clause is regular signature is regular बाकी के जो subject line is also optional बाकी के जो 5 है टोटल 8 है तो one is personal and other notation second is attention line and third is subject line बाकी के जो 5 ऑप्शनल पार्ट्स है वो सारे यहाँ आएंगे enclosure carbon copy notation that is CC identification line mailing instruction and postscript okay so this way an optional letter can be framed okay जो हाईलाइटेड पार्ट है वो ऑप्शनल पार्ट है बाकी सारा कंपलसरी रेगुलर पार्ट्स है okay so students in the next part of the video we will try to finish out with regular parts of business letters explanation next part में हम regular parts का जो explanation है proper 7 parts का वो कोशिश करेंगे खत्म हो जाए स्टार्ट करेंगे उसके साथ और उसके अगले वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि ओकेजनल पार्ट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रॉपर से एक्सप्लेन कर दिया जाए ओकेजनल पार्ट्स जो हमने आज देखे दोनों की ब्रीफिंग हमने देख ली दोनों की प्लेस हमने देख ली कि लेटर में किस जगह मेंशन किए जाते हैं okay if you are having any doubt please fill down the comment section students start commenting so that we can know that you have seen or watched the videos your comments can motivate us to bring more videos as soon as possible as early as possible okay till then stay home stay safe happy learning